Good morning students, welcome to Path Online Tutorial. In this tutorial we will be covering up the topic, the chapter, the Indian Constitution, which we have already done in our live class. So class 8, as we have already studied that what is our constitution, why do we need a constitution? Like we have explained in the class, so let's recapitulate the concept. The way we play games, football, cricket, we need rules and regulations to be followed properly. In a similar manner, if we want to run a society or a country, we need proper laws, proper rules and regulations. So for the proper functioning of the country, laws are necessary. Constitution consists of set of rules and principles to govern the country. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, जो फ्रेम किया गया था, वो किया गया था हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, that is in December 1946 by Constituent Assembly. इस असेंबली में 300 members थे and it was headed by Dr. Rajendra Prasad. The Constituent Assembly completed the work in 2 years, 11 months and 18 days. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. We celebrated Republic Day because 26 January 1950 को हमारा Constitution frame हुआ था. It came into force. So let's look at what are the main features of Indian Constitution. We have several features. Number 1, federalism. Number 2, parliamentary form of government. Number 3, separation of power. Number 4, fundamental rights. Number 5, an independent judiciary. And number 6, secularism. Let's look at the first feature, which says federalism. Federalism is the prime feature of the constitution, जिसमें एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है. So in India there are government at state, at a center. पंचायती राज is the third tier of the government. जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पंचायती राज गवर्न करती है. अगर हम स्टेट में चले जाएं तो स्टेट की अलग गवर्नमेंट रूल करती है. अगर हम सेंटर की बात करें तो वहाँ पर हमारी सेंटर की गवर्नमेंट रूल करती है. दिस इज़ नोन एज फेडरलिज्म, कि हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट अलग अलग रूल करती है. नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैं उनको जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल. उनको चुनने वाला कौन है? लोग हैं. इट इज़ ऑल्सो गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. सो बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज़ the person of age 18 and above is eligible to vote, is eligible to elect their representative. Third, separation of powers. The powers are separated in 3 manner. 1 is legislature, number 2 executive and third is judiciary. Legislature का मतलब होता है our elected representative, those who make laws. एक person जो law बनाएगा, जिनको हमने elect किया है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूट करने का मतलब लागू करना. जो लॉज बनाए गए हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं. एक पर्सन जिसने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ने लॉ बनाया. नंबर 2, एग्जीक्यूट मतलब कि उन्हीं लॉज को स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. एंड नंबर 3, जुडिशरी. जुडिशरी ये देखती है कि वेदर वो जो सिस्टम हमने लागू किया है वेदर इट इज़ वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है. इसमें कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है. तो हम लोग यहाँ पर उस काम को चेक करते हैं. देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जैसे हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है तो हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो उन्होंने हमें दिए हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोस फंडामेंटल राइट्स. The Constitution guarantee right of the individual against the state as well as against the other individual. There are fundamental rights given to all the Indian people. First is right to equality. Right to equality का मतलब होता है we all are equal. No matter हमारा क्या social background है, economic background है, हमारी क्या caste है, हमारा क्या color है, हमारा क्या gender है, irrespective of all these factors, we all are equal before law. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में हम ये देखते हैं कि हम लोगों के पास फ्रीडम है
कि हम कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं फॉलो किया जाता। थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी के पास भी कोई हक नहीं है कि कोई हमें एक्सप्लॉयट करे। हम बच्चों को देखते हैं हमारे इंडियन स्कीम के अकॉर्डिंग कि बच्चों को जो है 14 इयर्स की एज तक कंपल्सरी एजुकेशन जो है, बच्चों की कंपल्सरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर हम बच्चों को 14 इयर्स की एज के नीचे देखते हैं कि दे आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज और ढाबाज, सो दिस इज़ अ एक्सप्लॉयटेशन केस। सो दे ऑल चिल्ड्रन हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो उनको एक्सप्लॉयट करने का हमारा कोई हक नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ राइट गिवन टू द चिल्ड्रन, टू द पीपल, टू द लेबर फोर्स, कि उनको कोई हक नहीं है एक्सप्लॉयट होने का। राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। We can adopt any religion, we can adopt any kind of culture, and we can have education. We can acquire education, कोई भी education हम acquire कर सकते हैं। Right to constitutional remedies. What is the meaning of right to constitutional remedies? Like we have discussed that in constitution, that whatever it is in the constitution, इन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में ये कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट रेमेडीज़ ऑल्सो। अगर कोई भी सिटीज़न ये फील करता है कि उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, तो वो पर्सन, वो सिटीज़न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अप्रोप्रिएट कोर्ट में जा कर के उसके अगेंस्ट अपनी जस्टिस के लिए मांग कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के साथ साथ उनको हमें ये भी राइट देता है कि अगर हमारे कोई भी राइट वायलेट होते हैं तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट एंड फाइट अगेंस्ट इट। देन वी हैव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट इन अ डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि एक सेकुलर स्टेट में कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं प्रमोट किया जाता। लाइक हमारे इंडियन कंट्री में लोग अलग कल्चर के हैं, अलग स्टेट्स के हैं, अलग लैंग्वेजेस के हैं। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं फॉलो किया जाता। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे कल्चर को भी प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो कि हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में पढ़ा। सो सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि हम लोग सारे रिलीजन को एक समान मानते हैं। वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एट अ स्टेट, सो दैट इज़ सेक्युलरिज्म। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लाइक हमारे पास जो जजेस होते हैं एट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोगों को इनकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, बट दे कैन नॉट बी ईजीली रिमूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव। लाइक वी हैव जुडिशरी जो हमारी हर चीज़ को हमारे जितने भी केसेस हैं उनको फाइट करती है। लाइक वी हैव अ प्रॉब्लम, वी फेस अ प्रॉब्लम, वी कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, वी कैन गो टू द हायर कोर्ट, दैट इज़ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में हमारे डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होते, वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज़ हाउ द जुडिशरी हैज़ फ्रेम्ड इन आवर कंट्री।